Hi everyone, I hope you are having a wonderful day and it's your friend Yuvrajan. So yes guys, I'm a professional medical biller and I'm working in a medical billing company. And today, as you have seen the thumbnail, we are going to discuss about the medical billing, what kind of work we have to do in US medical billing and what kind of process is this and how it's work. So we guys are going to cover each and everything, but beginning of this video, if you guys are new here and this is your first time you are watching my video, so yes, you should subscribe my channel and also press the ringing bell so that you guys can have more videos related to medical billing, related to job opportunities and vlogging. Sorry guys, this is weekend, I'm not doing well and I have the health issue, but still I'm just gonna go ahead and I'm going to let you know each and everything how medical billing works. But if you guys are watching this video and that's mean you guys are looking for job in medical billing. So as a medical biller, I just wanted to let you know there are multiple jobs is available. There are multiple departments are available in medical billing. As an example, I am working in AR department in follow up. There are multiple departments like charge entry, document verification, payment posting, and like a coder also comes into the medical billing. So there are multiple departments are available for few job. There are no certification is mandatory, but like for a medical coder, like if you are looking for a medical coder job, so yes, you should be certified for applying this job. But if we are going to talk about the medical biller, there are no certification is mandatory. If you are a graduate, then you can apply for this job, and I'm going to let you know the job how you can apply and the more for more like top 5 to 10 companies where you can apply in pan India. So let's go ahead and now we're going to talk about like how medical billing work. So guys, let's start with an example. जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी नहीं है, बट यूएसए में ऐसा नहीं होता. वहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है. जैसे कि आप यूएस में रहते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है. वहाँ पे 90% या 99% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप एक तो इंश्योरेंस के नाम बता देता हूँ, जैसे मेडिकेयर हो गया या फिर मेडिकेड हो गया या फिर पीसीबीएस. प्राइवेट इंश्योरेंस भी होते हैं, गवर्नमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी भी है वहाँ पे. सो वहाँ पे मल्टीपल इंश्योरेंस अवेलेबल है. तो आपको अगर कोई भी डिजीज़ होती है या फिर आपका कोई भी ऑपरेशन होना है, आपको कोई भी हेल्थ इशू है, तो आपको डॉक्टर को पे करने की ज़रूरत नहीं होती. उसके लिए यू हैव टू प्रोवाइड योर इंश्योरेंस. तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस कार्ड मिलता है. यू हैव टू परचेज एनी इंश्योरेंस, या फिर आपको कोई भी इंश्योरेंस का कोई भी प्लान लेना होता है, दैट इज़ मैंडेटरी. तो आपको ये बात ध्यान में रख लेनी है. यूएसए में हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है और हम बात कर रहे हैं यूएस हेल्थ केयर की, यूएस मेडिकल बिलिंग के बारे में ये कैसे काम करता है. सो गाइस, एज एन एग्जांपल, जैसे आपका कोई किडनी से रिलेटेड ऑपरेशन होना है, आप फिजिशियन के पास विजिट करते हो, तो इन दैट कंडीशन व्हाट फिजिशियन विल डू, ही विल टेक योर इंश्योरेंस कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड वो आपकी एक डाटा एंट्री करते हैं, चेक करते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं, आपके पास कौन सा इंश्योरेंस है, आपने उस इंश्योरेंस का कौन सा प्लान लिया है. एंड ही विल टेक ऑल द डेमो एंट्री, आपकी एज, एलिजिबिलिटी, आपका वेरिफिकेशन, एसएसएन नंबर, एवरीथिंग ही विल टेक. एंड उसके बाद वो उस डिटेल्स को शेयर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास कि हमारे पास डेविड नाम का पेशेंट आया है, उनका ऑपरेशन होना है किडनी से रिलेटेड, एंड आप ये सब सर्विसेज कवर करते हो. अगर हम डेविड को ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, क्या आप उन सब के लिए हमें पेमेंट करेंगे. सो दे आर गोइंग टू आस्क दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू द इंश्योरेंस कंपनी. अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है येस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल दिस थिंग एंड डेविड इज एलिजिबल फॉर दिस सर्विसेज, तो इन दैट कंडीशन फिजिशियन इज गोइंग टू आस्क फॉर द ऑथराइजेशन नंबर कि आप फिजिशियन जो डॉक्टर है वो ऑथराइजेशन नंबर के लिए पूछेंगे. एंड इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो ऑथराइजेशन नंबर प्रोवाइड कराएगी फिजिशियन को कि येस आप इस पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं और ये ऑथराइजेशन नंबर है, वी आर गोइंग टू पे फॉर ऑल द सर्विसेज. तो उसके बाद स्टार्ट होते हैं आरसीएम के 10 पॉइंट्स, 10 to 9 पॉइंट्स की. उसके बाद क्या प्रोसेस होता है मेडिकल बिलिंग में. सो आई एम गोइंग टू लेट यू नो 10 पॉइंट. सो गाइज, फर्स्ट पॉइंट होता है अपॉइंटमेंट. जो भी
पेशेंट होता है वो डॉक्टर से लेता है अपॉइंटमेंट कि मैं आपके क्लिनिक में कब विज़िट कर सकता हूँ या फिर आपके हॉस्पिटल में कब विज़िट कर सकता हूँ। सो ही इज़ गोइंग टू टेक द अपॉइंटमेंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, या फिर हम आपको बोल सकते हैं डेमो एंट्री, जो मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताई है। उसमें क्या होता है, पेशेंट को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसमें जो फिजिशियन होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं पेशेंट से, जैसे उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, एलिजिबिलिटी, उनके पास कौन सा इंश्योरेंस कार्ड है, क्या उनका पॉलिसी नंबर है, क्या उनका एसएसएन नंबर है, क्या उनका बिलिंग एड्रेस है, उन्हें कौन सी डिसीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका डॉक्टर एनकाउंटर। उसमें डॉक्टर एनकाउंटर में होता है, डॉक्टर चेक करता है कि पेशेंट को किडनी से रिलेटेड क्या डिजीज़ है, किस चीज़ का ऑपरेशन होना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी ऑपरेशन के लिए। उसके बाद आपका होता है सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डॉक्टर और पेशेंट के बीच जो भी बातचीत होती है उसे ऑडियो में रिकॉर्ड किया जाता है, ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। एंड जैसे एज एन एग्जांपल हम ले सकते हैं, उसमें बातचीत होती है कि पेशेंट की एज कितनी है, उसे क्या डिसीज़ है, उसे क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, तो ये सब चीज़ें, क्या क्या दवाइयाँ रिक्वायर्ड होंगी, तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद उस ऑडियो को मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में कन्वर्ट किया जाता है, लाइक इन ए रिटन प्रूफ उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। उन्हीं के बेसिस पे नेक्स्ट पॉइंट आता है जो होता है आपका कोडिंग। उन्हीं के बेसिस पे कोडिंग होती है। कोडिंग में भी मल्टीपल थिंग्स आर अवेलेबल, जैसे कि आपका कोडर की भी एक अलग से जॉब होती है। सो कोडिंग होती है, जैसे एज एन एग्जांपल हम कोड्स ले लेते हैं। सो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज़ ICD-10 कोड होते हैं, जो कि दवाइयों के कोड होते हैं या फिर किसी भी सर्विस के कोड होते हैं। हर चीज़ का अलग कोड होता है, तो उन्हीं के बेसिस पे कोडिंग होती है। सो दैट्स टोटली डिफरेंट पार्ट, वो उसमें मेडिकल बिलर का कोई रोल नहीं होता। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्लेम सबमिशन। क्लेम सबमिशन में हम एक फॉर्म फिल करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं CMS 1500, जो कि फॉर्म होता है, क्लेम फॉर्म होता है, जिसे हम फिल करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते हैं। उसमें सभी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई वो सब इन्फॉर्मेशन होती है, चार्ज एंट्री, किस सर्विस का कितना अमाउंट है, वो सब होता है। तो उसे फिल करने के बाद हम उसे सबमिट कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। सो मोस्ट लाइकली इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है फॉर ऑल द सर्विसेज व्हाट एवर वी हैव प्रोवाइड टू द पेशेंट और फिजिशियन हैज़ प्रोवाइड टू द पेशेंट। But in rare cases, if insurance company deny that we are not going to pay for these services, अगर इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर देती है कि हम इन सर्विसेज के लिए पे नहीं करेंगे, या देयर कुड बी एनी रीज़न, तो उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्टेप विच इज़ AR डिपार्टमेंट, फॉलोअप डिपार्टमेंट, वेयर आई एम वर्किंग एज ए सीनियर प्रोसेस एसोसिएट इन AR डिपार्टमेंट। सो आई एम गोइंग टू लेट यू नो what we have to do in that part। अगर किसी भी सर्विसेज के लिए या फिर किसी भी क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर देते हैं कि हम इस सर्विसेज के लिए पे नहीं करेंगे, वी हैव टू टेक द फॉलोअप। हम उसका फॉलोअप लेते हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी से पता करते हैं कि वाई यू गाइज डिड नॉट पे फॉर दिस सर्विसेज एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। इफ़ दे सेड कि वी नीड मेडिकल नेसेसिटी, हमें मेडिकल रिकॉर्ड्स या फिर मेडिकल डॉक्यूमेंट चाहिए, पेशेंट के ये डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, या फिर हमें फिजिशियन के पास से ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, या फिर फिजिशियन ने ऑथराइजेशन नंबर नहीं लिया था कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कराने से पहले। सो देयर आर लोट्स ऑफ थिंग्स इन AR डिपार्टमेंट। इफ़ यू गाइज विल वर्क इन AR डिपार्टमेंट, सो you guys will know everything. If you guys, sorry guys, I have the itch. So if you guys want to know about the AR department, you can comment below, and I'm going to make a video about the AR department, how AR department works, how we have to work on denials, how we have to work on rejections. So I'm going to let you know each and everything in that video. So AR department में ये काम होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए, denials, rejections, never, there are lots of things in AR department. We have to work on the patient account। अगर हमें पेमेंट आ जाती है, so we have to close the patient account। अगर नहीं आती तो what is the reason, हमें उसका पता लगाना होता है। we have to generate the revenue as much as possible। so जो भी ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इट्स कम्स अंडर द RCM, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। सो ये पॉइंट होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एट द एंड की
किन किन फील्ड्स में जॉब अवेलेबल है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में मेडिकल बिलिंग की जॉब्स अवेलेबल होती है। सो मोस्ट लाइकली ऑल द डिपार्टमेंट में जॉब अवेलेबल होती है। जैसे आपका पहला डिपार्टमेंट था वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन का, तो मेडिकल बिलिंग में इसलिए आपको उसमें भी जॉब मिल जाती है और आप आफ्टर जो ग्रेजुएशन ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है किसी भी मेडिकल बिलिंग में जॉब करने के लिए। उसके बाद आपकी चार्ज एंट्री में भी आपकी ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब कर सकते हैं, पेमेंट पोस्टिंग में भी आप कर सकते हैं। बट कोडर की जॉब ऐसी है जिसमें आपको सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। सर्टिफाइड, you should be certified for that, and certification is mandatory for a coder job. You cannot apply after your graduation. उसके बाद आपको AR के लिए, if you guys want to apply for the AR department, so yeah, you should be graduate. आपके पास अच्छे skills होने चाहिए इन सब jobs के लिए। You should have the good communication skills and yeah, आपके पास आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। All these things is required, and now let's come to the next point. बात कर लेते हैं टॉप 10 to 5 to 10 कंपनीज इंडिया में मेडिकल बिलिंग की। सो लाइक मी, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मी, सो आई एम वर्किंग इन नैक ग्लोबल। नैक ग्लोबल इज टॉप कंपनी, कमिंग टू द टॉप 10 कंपनीज इन इंडिया। सो मैं वर्क कर रहा हूँ नैक ग्लोबल में। जो नैक ग्लोबल है एक मेडिकल बिलिंग, US मेडिकल बिलिंग की कंपनी है। इनकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं इंडिया में एंड आउट ऑफ कंट्री एज वेल। जो इनकी हेड ब्रांच है वो है चंडीगढ़ इंडिया में। चंडीगढ़ इंडिया में इनकी 2 ब्रांचेस है एंड नेक्स्ट ब्रांच इनकी जयपुर में है। उसके बाद इनका मे बी आउट ऑफ कंट्री दीज गाइज डू हैव द ब्रांचेस। उसके बाद बात कर लेते हैं पैसिफिक जो कि नोएडा के अंदर सिचुएटेड है, वो काफ़ी बड़ी कंपनी है। उसके बाद आती है R1 RCM जो कि आपकी ऑल्सो नोएडा में सिचुएटेड है, दिल्ली NCR में सिचुएटेड है। उसके बाद आपकी ओमेगा आती है, यूनिफाई आती है। देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, नाक, चोरी एंड there are lots of companies, so you guys can apply anywhere। Bangalore में बहुत सी मेडिकल बिलिंग की कंपनी है एंड मोस्टली इन ऑल द स्टेट्स यू गाइस कैन फाइंड ईजिली कैन अप्लाई फॉर द जॉब रोल। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं नैक ग्लोबल में मोहाली चंडीगढ़ लोकेशन के लिए, सो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। यू गाइस कैन शेयर योर रिज्यूमे ऑन दिस नंबर। आई एम गोइंग टू रेफर यू इन माई ऑर्गेनाइजेशन। आपकी सैलरी क्या रहती है? मोस्टली AR डिपार्टमेंट में सैलरी डिपेंड ऑन द लोकेशन। आप कौन सी लोकेशन के लिए अप्लाई करते हो। अगर हम बात करते हैं अगर साउथ की, तो साउथ में सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है। बट इन मोहाली चंडीगढ़ यू गाइस विल गेट अप्रोक्स 17K CTC टू 23K CTC जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है। एक फ्रेशर की वो आपकी होती है 15,000 से 19,000 के बीच में। So this is your salary as a fresher, and after graduation you guys can join us. So guys, if you wanted to know more about the medical billing कि क्या काम होता है, तो this is what I have just told you। ये मेडिकल बिलिंग का ऑन प्रोसेस है। हम वर्क करते हैं डिफरेंट पोर्टल्स पे, जो पोर्टल होते हैं जो कि हमें प्रोवाइड होते हैं प्रोवाइडर की तरफ से। एंड हम डॉक्टर एंड प्रोवाइडर के लिए काम करते हैं, हम डॉक्टर्स के लिए भी काम करते हैं, हम प्रोवाइडर्स के लिए भी काम करते हैं। प्रोवाइडर्स, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, प्रोवाइडर्स कौन होते हैं। सो प्रोवाइडर वो होते हैं जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, जैसे मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, तो वो जो प्रोवाइड कराते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स, उन लोगों के लिए भी हम काम करते हैं। इन DME देयर आर मल्टीपल बिलिंग्स आर अवेलेबल। जैसे फिजिशियन बिलिंग हो गई, आपकी डेंटल बिलिंग हो गई, आपकी DME हो गई। मैं DME में काम करता हूँ। सो it is just like it's washed। If you just wanted to join, so you can join, and after that you guys will know each and everything step by step। But if you guys do have any question related to the medical billing, you guys can comment below and I'm gonna revert you back as soon as possible। You can reach out to me on my WhatsApp। Apart from that, you should subscribe my channel and also press the ringing bell so that you guys can have more videos related to the medical billing, related to the denials, rejection, and I'm gonna have more videos related to the denials, rejection as soon as possible related to the AR department। So thank you so much guys for watching this video, and if you wanna join Nag Global, you can text me and you can share your resume on my WhatsApp। Thank you, have a great day।